بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، یعنی پرچیاں ڈالتے، اور جس کا نام نکلتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی، اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی۔ واپس لوٹی، لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی موجود ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے اس وقت عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا، اور اس وقت میں اوائل عمر کی تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کا وجود دیکھ کر ان کو کیا خیال آنا تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا اور نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ گلگبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہو، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں ام مستہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ ام مستہ میرے والد کی خالہ تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ مستہ گا رہی تو مجھے برا لگا۔ میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مستہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ان کے سر ہو گئی کہ کم ویزا کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے مائکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہ
नहायत मामूली बात है। तुम अपना दिल भारी मत करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी हो जो उसे महबूब हो और उसकी सोचतें भी हों, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं? अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेर लिया कि बयान से बाही है। इस वक्त से जो रोना शुरू हुआ, वल्लाह एक दम भर के लिए मेरे आंसू नहीं थमे। मैं सर डालकर रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत। बस रंजो अलम और रोना है और मैं हूँ। सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसू की लड़ी ना थमी। दिन को भी यही हाल था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। वही में देर हुई। अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात मालूम ना हुई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने साफ कहा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल तो इनकी इज्जत, मोहब्बत और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर हैं। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि तेज़ मिजाज के थे, इसलिए जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तंगी नहीं, और तो इनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की खादमा से पूछें तो आपको सही वाक़या मालूम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक़्त घर की खादमा हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया और इनसे फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई भी बात शक व शिबा वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, मैंने इनमें कोई भी बात कभी भी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गूंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती हैं तो बकरी आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने इनमें कोई कसूर नहीं देखा। चूँकि कोई सबूत इस वाक़या का ना मिला, इसलिए इसी दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया, कौन है जो मुझे इस शख्स की ऐज़ों से बचाए जिसने मुझे ऐज़ें पहुँचाते पहुँचाते अब तो मेरी घरवालियों के बारे में मुझे ऐज़ें पहुँचानी शुरू कर दी। वल्लाह, मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपनी घरवालियों में सवाए बलाई के कोई चीज़ मालूम नहीं। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं मेरी तनासत में, तो इसके मुतल्लिक भी सवाए बलाई के और कुछ नहीं, वो मेरे साथ ही घर में आता था। ये सुनते ही हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। अगर कबीला औस का शख्स है तो भी हम इसकी गर्दन तन से जुदा करते हैं। अगर वो हमारे हिजरत भाइयों में से है तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे हमें इसकी तमील में कोई अज़र ना होगा। ये सुनकर हज़रत साद बिन अबाद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। ये कबीला खिजरत के सरदार थे तो बड़े नेक बख्त थे, मगर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इस गुफ्तगू की वजह से इन्हें अपने कबीले की हमायत आ गई और इनकी तरफदारी करते हुए हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, ना तो तू इसे कत्ल करेगा, ना इसके कत्ल पर तू कादिर है। अगर वो तेरे कबीले का होता तो तू इसका कत्ल किया जाना कभी पसंद ना करता। ये सुनकर असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। ये हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के भतीजे थे। कहने लगे, या साद बिन अबाद रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम झूठ कहते हो, हम इसे ज़रूर मार डालेंगे। आप मुनाफिक हैं कि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हैं। अब इनकी तरफ से इनका कबीला और इनकी तरफ से उनका कबीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए और करीब था कि औस और खिजरत ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। ये तो था वहाँ का वाक़या। मेरा ये हाल था कि सारा दिन भी रोने ही में गुजरा। मेरे इस रोने ने मेरे वालिदैन को परेशान कर दिया। वो समझ बैठे थे कि मेरा ये रोना मेरा कलीजा फाड़ देगा। दोनों हैरत ज़दा मगमूम बैठे हुए थे और मुझे तो रोने के सिवा और कोई काम ही ना था। अंसार की एक औरत आई और वो भी मेरे साथ रोने लगी। हम यूं ही बैठे हुए थे, अचानक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सलाम करके मेरे पास बैठ गए। कसम अल्लाह की, जब से ये बहतानबाजी शुरू हुई थी आज तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कभी नहीं बैठे थे। महीना भर गुजर गया था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हालत थी कि कोई वही नहीं आई थी कि फैसला हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठते ही अव्वल तो तशहुद पढ़ा और फिर अम्मा बात पढ़कर फरमाया, ए आयशा, तेरी निस्बत मुझे एक खबर पहुंची है। अगर तू वाकई पाक दामन है तो अल्लाह ताला से इस्तगफार कर और तौबा कर। बंदा जब गुनाह करके अपने इकरार गुनाह के साथ अल्लाह ताला की तरफ झुकता है और इससे माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला इसे बख्श देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाकर खामोश हो गए। ये सुनते ही मेरा रोना धोना सब जाता रहा। आंसू थम गए, यहाँ तक कि मैं एक आंसू कतरा भी ना पाती थी। मैंने अव्वल तो अपने वालिद से दरख्वास्त की कि मेरी तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हिजाब
जवाब दे। लेकिन उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ। अब मैंने अपनी वालिदा की तरफ देखा और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जवाब दें, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मैं नहीं समझ सकती कि मैं क्या जवाब दूँ। आखिर मैंने खुद ही जवाब देना शुरू किया। मेरी उम्र कुछ ऐसी बड़ी तो ना थी और ना ही मुझे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ था। मैंने कहा, आप सबने एक बात सुनी और इसे अपने दिल में बिठा लिया, गोया सच समझ लिया। अब अगर मैं कहूँगी कि मैं इससे बिल्कुल बरी हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं वाकई इससे बिल्कुल बरी हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। हाँ, अगर मैं किसी अमर का इकरार कर लूँ, हालांकि अल्लाह ताला को खूब इल्म है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, तो तुम अभी मान लोगे। मेरी और तुम्हारी मिसाल तो बिल्कुल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के कौल की तरह है, बस सब्र ही अच्छा है जिसमें शिकायत का नाम ही ना हो, और तुम जो बातें बनाते हो इनमें अल्लाह ताला ही मेरी मदद करे। इतना कहकर मैं अपने बिस्तर पर आ गई। वल्लाह मुझे यकीन था कि चूंकि मैं पाक हूँ तो अल्लाह ताला ज़रूर मुझे बरी करेगा, लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी ना था कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। मैं अपने आप को इससे बहुत कमतर जानती थी कि मेरे बारे में कलाम अल्लाह की आयतें उतरे। हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल था कि मुमकिन है कि ख्वाब में अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बुरात दिखाएं। वल्लाह अभी तो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हटे थे और ना घर वालों में से कोई बाहर निकला था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई और चेहरा मुबारक पर वही निशान जाहिर हुए जो वही के वक्त जाहिर होते थे, और पेशानी मुबारक से पसीने की पाक बूंदें टपकने लगी। सर्दी में भी वही नाजिल होने की यही कैफियत हुआ करती थी। जब वही तो चुकी तो हमने देखा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसी से शगुफ्ता हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बुरात नाज़िल फरमा दी। इसी वक्त मेरी वालिदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि बच्ची हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाओ। मैंने जवाब दिया, वल्लाह ना तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होंगी और ना सवाए अल्लाह के किसी और की तारीफ करूँ। इसी ने मेरी बुरात और पाकीज़गी नाज़िल फरमाई, इसीलिए मैं तो इसी की तारीफ करूँगी और इसी का शुक्र अदा करूँगी। बहरहाल एक अहम वाक़या था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और उसके साथियों ने मशहूर कर दिया था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जानबूझकर पीछे रह गई थी और उनका हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु से ताल्लुक़ था, जो बाद में ऊँट लेके आए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से 3 अशख़ास को कोड़े लगे थे, जिनमें से एक हसन बिन साबित थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर आज़म थे। एक मुस्ताह था जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाज़ाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के खालाजाद भाई थे, और इस कदर गरीब था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर ही में रहता था, वहीं खाना खाता था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ही इनके लिए कपड़े बनवाते थे। और एक औरत थी जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी। इन तीनों को सज़ा हुई।